So how did you start your career in gymnastics, sir? Gymnastics is a very long back when I was at the age of 11. So normally I stay in Chembur. That is my birthplace and that is my native place also. So we have got a very nice gymnasium called this Pawan Putra Vyam Mandir in Chembur. It's a very old gymnasium and this is the only gymnasium in Maharashtra who started gymnastics and Mallakhamb training in Maharashtra, Mumbai. So myself, my elder brother, my sister, so both all were the member of that club. My father was very much interested in in sports, not in particular gymnastics. So I joined that club. Mr. Suhas Patare was there. He was the main, you can say that owner, director, guru of that club. And I started this gymnastics. But earlier, gymnastics was not that much, you can say, familiar also. No equipments were there. So we used to do yogasans and Mallakhamb also so simultaneously. And earlier, there was only one national level also and at state level also. It is called gymnastics and Mallakhamb. So that was a combined association was there. So I started doing performing this Mallakhamb. Then simultaneously we were doing gymnastics also. So both these games I used to do, and then I have participated in state championships, national championships, and it started like that only. So this is Okay. the starting point of my all uh, sports activities. तो सर आपको अराउंड कितने साल हो गए जिम्नास्टिक्स में? Gymnastics, you can say no. I think that my that is at around 68, 69. I started this gymnastics Malakam, and then I left and around 82, 83 because after this my leg injury. Then I became this national champion in gymnastics also. Earlier 74, 75 I was champion in Malakam. Now I mean national and state champion. So I was awarded with Chhatrapati Award in 76, 77 for the year 76, 77. And it was started in Malkham 2 years back. So first Chhatrapati Award in Malakam was given to my elder brother, Pradeep Chemburkar. And that is also, he is also from our own institute. So first 3, 4 Chhatrapati Awards were given in Malakam from our own institute, that is Pawan Mandir. So this is the starting point. And after this Mallakhamb, that is 74, 75, after getting this state award of Chhatrapati, so I started this concentrating on gymnastics because see, afterwards there was no international competitions and tournaments in Mallakhamb. So there was I think that my coach told me that there is a wide scope in gymnastics because gymnastics is a not only national, international game. It is in the Olympics also. It is in World Championships also. Then I concentrated on gymnastics, and while doing this in '79, we had a national champion in Chembur, Mumbai itself only. I was there in best four, among best four. And then in 1980, there was a competition in Kolkata. I missed my national champion title in that only because of some problem in this voting table. And then 1981, I became the national champion, where this national was held at Patiala, Punjab. That was the starting point of National Institute of Sports. And during that day, you know that it was 1982 preparation for their Asian Games in Delhi Asian Games. That preparation was going on, and the government and National Federation has organized long coaching camps in all the sports at Patiala. So I was there from 79, 80 and 80, 81 during that period. So I got some good experience and I got some good practice in that National Institute of Sports Patiala, so that I can achieve good elements in gymnastics, that is difficult elements,
because in our club it was not possible due to space also, due to infrastructure also, and due to no safety equipments were available over there. So I got the advantage of that national coaching camp for the preparation of this 1982 Asian Games. So this is all. ओके सर। सर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था विच वाज हेल्ड इन मॉस्को, इट वाज नोन एज रीगा इंटरनेशनल इन 1981। करेक्ट। तो सर इतना 40 इयर्स अगो का जो कंपटीशन था इंटरनेशनल का, तो तब के टाइम पे जो ट्रेनिंग और फैसिलिटीज जो होता था और अभी करंट टाइम में जो फैसिलिटीज और ट्रेनिंग अवेलेबल है, तो सर उन दोनों के बीच का अगर आपको डिफरेंस बताना है तो सर आप क्या बताएं? इंडिया में बोलेगा तो ड्यूरिंग दैट पीरियड no such facilities were there except in Patiala. It was a National Institute of Sports, and that was the only concentrated and dedicated gymnastics center in India. And we were not having this jumping feet just to try for this multiple somersaults, multiple twists or something. So it was not possible. It was never available in India at all. But when we visited this Moscow and Riga in 1981 for this competition, it was altogether something absolutely a different thing. We saw their gymnasium, practice gymnasium also, that was very well equipped and well maintained, and including all the safety equipment were also available over there. So, and compared to now, international scene, yes, lot of difference, lot of changes have taken place. बहुत ही changes हो गया है. Even in India also, now you can find almost in every state there is a one gymnastics complete set of equipment from the not in made in India but made from other abroad companies जो रहती है, foreign equipment जिसको कहते हैं. And this is only because of this government has given some concession for purchasing this foreign equipments. तो इसी की वजह से अभी आज की तारीख में इंडिया में भी वो फैसिलिटीज सब जहाँ भी है, हर एक स्टेट में एक एक ऐसे स्टेडियम आपको मिलेंगे जिम्नास्टिक्स का जो मिलेंगे कि जहाँ पे पूरा स्टेट इक्विप अवेलेबल है, फैसिलिटीज अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है. बट ड्यूरिंग दिस 70 एंड दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड आप देखेंगे तो कोई नहीं था. दैट वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल. महाराष्ट्र में तो कुछ भी नहीं था. Nothing was there except one to we were having only mat जो बोलते हैं, that's all. बाकी other equipment, safety equipment जो जरूरत है particularly in gymnastics के लिए learning multiple twists and multiple somersault is very essential things है. जैसे आपको बोलते हैं ना कि वेस्ट बेल्ट होता है, तो बेल्ट लेके पुली पे लगा के then we have to do all this. You can see in the circus में भी आपने देखा होगा. So for safety purposes, while doing this different saltos, they are कमर बेल्ट जिसको बोलते हैं, वेस्ट बेल्ट वो होता है. तो वो भी अपने पास अवेलेबल नहीं था हमारे मतलब अपने इंडिया में. बट नाउ स्लोली नाउ आपको मालूम पड़ेगा कि ऑल ओवर इंडिया सब जगह पे ये अभी नाउ इट इज अवेलेबल. यस सर. और उसी का तो डिफरेंस होता ही है. ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट, उसी से ही आपको ज्यादा डिफिकल्ट एलिमेंट्स करने के लिए आसान हो जाता है एंड विदाउट एनी इंजुरी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स फील्ड. यस. इंडिया में जो जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग होती है, इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स होते हैं उसके ऊपर होती है, वो सब काफी एक्सपेंसिव होते हैं. तो सब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस है जो उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते. तो सर अकॉर्डिंग टू यू इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके? हाँ, ऑल्टरनेट इन बिटवीन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा स्कीम निकाला था 75-25. इसका मतलब ये है होता था कि जितनी भी कॉस्ट है दिस इज ओनली फॉर परचेस ऑफ फॉरेन इक्विपमेंट्स फॉर एनी एनी स्पोर्ट. जैसे जिम्नास्टिक्स में पूरा एक सेट लेना है, कंप्लीटली सेट लेना है अलॉन्ग विद ऑल अलाइड इक्विपमेंट, जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट होते हैं वो, तो इट गोज अराउंड 75 to 80 lakhs तक जाते हैं.
तो उसका 75% ग्रांट जो होती है वो गवर्नमेंट देती थी, एंड उसका 25% जो है वो अपने को जो स्टेट ने या जो क्लब ने किया है जिसको चाहिए वो कंट्रीब्यूट करता था। तो उस हिसाब से वो स्कीम को लेके काफी स्टेटों ने उसका एडवांटेज ले लिया। लेकिन उसके बाद क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ने खुद ने ये सब जितने भी है इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के काफी उन्होंने कंसेशन दे दिए हैं। वो उनके अपनी अपनी तरफ से, जैसे अभी देखेंगे तो इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है दिल्ली में आफ्टर 1982 एशियन गेम, तो वहां पे जिम्नास्टिक जो सेंटर्स है, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने ही खुद ने अपना पैसे से वो वहां पे ऑल इक्विपमेंट्स वगैरह अवेलेबल करके दिया है। तो ये चीज अभी ऐसे हो गया है कि स्टेट गवर्नमेंट बोलो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, अभी काफी चीजें अभी खेलो इंडिया के माध्यम से चल रही है कि वहां पे दे आर फाइंडिंग आउट नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर्स, और वहां पे फिर वो डेवलप करने के हिसाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, अवेलेबल करवा रही है। तो दिस इज, ये बहुत ही अच्छा एक ये निकला है, और जो स्कीम्स निकली है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंक्लूडिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, स्पोर्ट्स प्रमोशन है, वो बहुत ही अच्छा है, बढ़ावा दे रहे हैं, और उसकी वजह से ही काफी बच्चे लोग जिम्नास्टिक्स में आ रहे हैं, जिम्नास्टिक्स में स्किल डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, और उतना परफॉर्मेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं वैसे। तो दैट इज ओके। अच्छा इम्प्रूवमेंट चल रही है वहाँ पे उसमें। यस सर, आप पहले जॉइंट सेक्रेटरी थे, उसके बाद आप ऑफिशिएटिंग जनरल सेक्रेटरी जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया थे। तो सर तब आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी? जी, मैं एक्चुअली मेरा रोल एज ए एडमिनिस्ट्रेटर 2004 से चालू हुआ अपना महाराष्ट्र स्टेट में। सो आई टूक ओवर एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र इन 2004। उसके बाद फिर आई गॉट सम कांटेक्ट विद दिस, आई हैड ए कांटेक्ट विद द नेशनल फेडरेशन आल्सो। और वैसे नेशनल फेडरेशन के जितने भी ऑफिसर्स थे, बिकॉज हम लोग जितने कंपटीशन में जाते थे एज ए प्लेयर बोलो या एज ए आफ्टरवर्ड्स, मैं जो कोच या मैनेजर करके जाता था महाराष्ट्र की टीम से, तो वी वर हैविंग ए गुड टर्म्स एंड रिलेशंस होते थे। तो आफ्टर दैट 2007 में हमारी जो नेशनल फेडरेशन की, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्शंस हो गए, तो आई वाज गिवन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज ए जॉइंट। मेजर काम ये होता है कि जस्ट टू हेल्प ऑल द वर्क ऑफ सेक्रेटरी। तो उसमें ऐसा हो जाता था कि कोई अभी सर्कुलर्स कुछ निकालना है या कोई कंपटीशन करना है, तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है, नो है, तो एक जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। कोई प्रोग्राम करना है, अपना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट देखना है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने किए हैं नेशनल फेडरेशन के भी, और एज ए सेक्रेटरी तो ऑफ स्टेट के भी मैं करता रहा। बाद में ऐसा हो गया कि 2015 में एक थोड़ा सा टर्निंग और थोड़ा सा पॉलिटिक्स जैसे वो बोलते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट आ गया था कि करंट सेक्रेटरी वाज नॉट इन ए पोजीशन, ही डिनाइड टू डू वर्क एज ए सेक्रेटरी। तो और हमारी इलेक्शंस भी ड्यू थी नेशनल फेडरेशन की, तो आई वाज गिवन अपॉर्चुनिटी एंड चांस टू डू समथिंग प्रोसेस एज ए secretary of the national federation till the next election. That period was very very short. I think that it was hardly 4 or 5 months का period था वो, जिसमें के लिए मैंने ऑफिसिंग किया। एंड माय मेजर रोल एज ए सेक्रेटरी उसमें ऐसा था, नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फोर्ट और नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फेडरेशन, और उसमें नहीं था। तो हमारा मेजर रोल उसमें ऐसा था कि टू कंडक्ट द इलेक्शन इन फेयर एंड फ्री एंड फेयर मैनर। तो और वैसे हमने किया एज पर स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से किया था 2015 में। So that was my role, and I think that everybody was fully satisfied with the work during that short period. How to conduct the elections of any national federation, that is also as per the sports code, क्योंकि 2011 का sports code वो आया ही था। तो keeping in mind all the instructions of the sports code, हमने वो स्टेट सदी से नेशनल फेडरेशन का हमने इलेक्शन किया था। तो एवरीबडी प्रेज फॉर दैट ऑल्सो, बहुत अच्छा लगा सब लोगों को। ऑल स्टेट एसोसिएशन ऑल्सो प्रेज माई वर्क during that short period. Only thing is that I was there for only for few months वही था, एंड जितना असाइनमेंट था
I think that I have done it properly by proper way as per rules and regulations. यस सर. सर आपने इतने सालों तक जो काम संभाला आपका, तो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो आपके ऊपर काफी सारा वर्क प्रेशर होता होगा. करेक्ट. इस चीज को आप हैंडल कैसे करते थे? बेसिकली वैसे देखेगा तो राइट फ्रॉम बिगनिंग जब भी हमने जो ये स्पोर्ट्स का या जिम्नास्टिक्स या एक्टिविटीज का जो शुरुआत की है, वो शुरुआत ही हमारे ऐसी हो गई थी कि उस टाइम बहुत ही हार्ड वर्क किया था. तो ये हमारे कोचेस ने, हमारे जो कोच थे, उन्होंने यही सिखा के रखा था, कोई भी चीज आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी, या आप थोड़ा सा 2 पेजेस पढ़ो और एग्जामिनेशन के लिए जाओ और आप यू विल गेट दैट 90% और 80% और समथिंग. ऐसा नहीं है. आपको अच्छी तरह से थरोली नॉलेज होना चाहिए और उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको. यू विल नॉट बिलीव ड्यूरिंग दोज डेज, हम जब भी 70 80 में जो प्रैक्टिस करते थे, मॉर्निंग इवनिंग बोथ टाइम प्रैक्टिस करते थे. मॉर्निंग 5:30 बजे से लेकर 7 साढ़े 8 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे. फिर इवनिंग वापस 6 बजे से 9 o'clock तक प्रैक्टिस करते थे. आपको भी और एक मेरे को मतलब एक कहना अच्छा लगेगा मेरे को, क्योंकि जब ड्यूरिंग 75 to 80 आई वाज इन वेस्टर्न रेलवे. आई वाज रिक्रूटेड एज ए स्पोर्ट्स पर्सन इन वेस्टर्न रेलवे ड्यू टू माय ऑल national medals and in gymnastics. So during that period, अर्ली मॉर्निंग आई यूज टू डू 5:30 से 7 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे. घर पे आके ब्रेकफास्ट करके फिर वापस ऑफिस जाना है. 10 सवा 10 बजे का ऑफिस पकड़ना है. वेस्टर्न रेलवे वॉज काइंड इनफ टू ऑल द स्पोर्ट्समैन, क्योंकि वो खाली उनका ड्यूटी खाली मॉर्निंग से फर्स्ट हाफ तक होता था, 2 बजे तक. उसके बाद यू कैन गो टू योर जिम्नेशियम फॉर द प्रैक्टिस. तो 2 बजे तक वहाँ पे काम करने का, फिर घर पे आके रेस्ट करने का, थोड़ा सा पढ़ाई भी करना था, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज इन इंटरमीडिएट बीकॉम. तो ये करके फिर शाम को वापस 6 बजे आना, 9 बजे तक प्रैक्टिस करना. तो ये जो हार्ड वर्क जो है, तो हमको ऐसे सिखा दिया है. हमको परिस्थिति बोलो या हमारे गुरु लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा हमारे माइंड में सेट करके रखा है कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. और वो हार्ड वर्क कंटिन्यू हो गया. जब हम ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया है, तो वो सेम हिसाब से हम काम करना चालू किया है. तो फिर उसमें भी अपना घर संभालना, फिर बाकी बच्चों को ये करना, ट्रेनिंग भी देने का, साथ में शाम को ट्रेनिंग भी देने का है. एंड साइमल्टेनियसली एसोसिएशन का जो काम होता है वो भी करना है. और मोस्टली एसोसिएशन के हमारे बाकी के जो मेंबर्स होते थे, जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो जॉइंट सेक्रेटरी है या वाइस प्रेसिडेंट है, उनको बोल के फिर उनके थ्रू हम करवाते थे. So that was a really आप बोलेंगे कि इट वाज एक टीम वर्क जैसा है. तो टीम वर्क जैसा हमने अच्छा से 10 साल हमने अच्छा काम कर दिया है. नॉट ओनली सिंगल टीम हमने ही किया ऐसा नहीं है. तो हमारे प्रेसिडेंट थे, हमारे 5 6 वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके थ्रू हमने बहुत अच्छा काम किया है इन द फील्ड ऑफ जिम्नास्टिक्स. So this is a real story. Yes, sir. Sir, you were the committee member of State Sports Code, which was in 2011. तो सर उसके बारे में आप कुछ डिटेल्स बता पाए, वो क्या था एक्चुअली में? हाँ, जैसे देखो 2011 में जो स्पोर्ट्स कोड नेशनल लेवल पे आया था, तो उसके बाद फिर हमने अपने स्टेट लेवल पे भी स्पोर्ट्स कोड का ये हुआ था. क्योंकि उनका इंस्ट्रक्शन ऐसा था कि ये जो स्पोर्ट्स कोड है इट इज एट नेशनल लेवल का है. तो हर एक स्टेट ने अपना अपना स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाना चाहिए, क्योंकि नेशनल फेडरेशन का जो सेम स्पोर्ट्स पॉलिसी यू कैन नॉट अप्लाई इन स्टेट ऑल्सो. तो उसमें कोई जो चेंजेस करना है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट पोजीशन जो रहती है उसके हिसाब से. तो वहाँ पे हमने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था कि हमारे किस तरह से ये स्पोर्ट्स कोड को किस तरह से ढंग से अपने को महाराष्ट्र लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए किस तरह से करना है. तो कमेटी का बहुत बार ये मीटिंग वगैरह होते चलते थे. एंड देन आई यूज्ड टू गिव सम सजेशन इन राइटिंग ऑल्सो कि इसमें ये होना चाहिए, ये दिस चेंजेस शुड बी देयर. Particularly, I insisted for not only you should not make only instructions or code or rules, but there should be a committee to implement whether it is properly implemented or not. स्क्रूटिनी कमेटी जैसे बोलती है, मॉनिटरिंग कमेटी जैसे बोलती है कि योर वर्क शुड बी. क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट के पास काफी चीजें होती है, काफी काम रहता है.
तो ड्यूरिंग दैट पीरियड वो बराबर गया निकला है या नहीं निकला है, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं होने का, उसके लिए कमिटी ऐसा बहुत अच्छा हमने सजेशन उस टाइम में दिए थे, एंड दैट इज इम्प्लीमेंटेड। और मेरे हिसाब से वो स्पोर्ट्स कोड बहुत अच्छा, स्पोर्ट्स पॉलिसी कोड नहीं बोल सकता, पॉलिसी बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट हो गई है। मेरे ख्याल से उसके इन बिटवीन कुछ 14 या 15 में कुछ अमेंडमेंट भी आ गया है अच्छी तरह से। तो आई एम वेरी ग्लैड कि उस पॉलिसी में आई वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पॉलिसी टू इम्प्रूव द स्टेट का जितना भी है स्पोर्ट्स के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो या पॉलिसीज बोलो, उसको बनाने में आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी मेकर। तो ऐसा उसका ये पूरा ये है स्ट्रक्चर था। ओके करेक्ट। सर, इन इंडिया क्रिकेट एंड फुटबॉल का अवेयरनेस बच्चों में काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। अगर हम किसी बच्चे को भी देखें तो क्रिकेट खेलता रहेगा या फुटबॉल खेलता रहेगा। तो सर इसी तरह अगर जिम्नास्टिक्स की अवेयरनेस इतनी बढ़ानी हो तो अकॉर्डिंग टू यू क्या करना चाहिए सर? इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, और वो करना अभी आज की तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी वैसे देखिएगा तो जिम्नास्टिक्स का नाम अभी फ्रॉम रियो ओलंपिक से देखेंगे तो अच्छा हो गया है। हमारी इंडिया की जो स्टार जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, उसने अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करके व्हाट इज जिम्नास्टिक्स से पूरा इंडिया को दिखा दिया है क्या है। तो उस टाइम से जो जिम्नास्टिक्स इतना पॉपुलर हो गया है कि एवरीबडी नाउ कहीं भी जाएगा तो पेरेंट्स को लगता है कि मेरा लड़का मेरी लड़की जिम्नास्ट खेले। तो वैसे देखोगा तो 50% वर्क ऑलरेडी हो चुका है कि इट इज पॉपुलर नाउ। सेकंड थिंग, अगर ऐसा और ज्यादा उसमें डीपली करना है तो जैसे कुछ चीजें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी शुरू किया है कि फिजिकल एजुकेशन में उन्होंने कंपलसरी कुछ जिम्नास्टिक्स के 4-5 जो पॉइंट्स है उसमें डाल के वो कंपलसरी भी किया है। कुछ लेसन्स में भी वो जिम्नास्टिक्स के 2-3 पार्ट उन्होंने लेसन जो है वो इंक्लूड किए हैं जिम्नास्टिक्स के। तो ये सभी चीजें अभी ऐसा ऐसा शुरू हो गई है, एंड आई थिंक दैट दैट इज प्रॉपर वे से जा रही है। और थोड़ा सा एक अच्छी तरह से चेंजेस करना है तो वैसे देखेगा तो जिम्नास्टिक्स का कॉम्पिटिटिव लेवल पे जिम्नास्टिक्स जाने के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी चीजें ऐसी है। उसमें मेन इक्विपमेंट्स तो होते ही है, उसके साथ में अलाइड इक्विपमेंट्स मतलब ट्रेनिंग इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं वो भी इसकी जरूरत होती है। तो हर एक स्कूल में और इसमें नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा एक कभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि हर एक तालुका बोलो तो तालुका लेवल पे एक एक तालुका सेंटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाया है। फिर एक एक डिस्ट्रिक्ट पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाया है। उसके बाद डिवीजन जितने भी डिवीजन है 6-7 डिवीजन है, हर एक डिवीजन में डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाया। दिस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो सजेशन ये है कि एक ऐसे डेडिकेटेड सभी जगह पे आप इतने कॉस्टली इक्विपमेंट नहीं डाल सकते हैं। तो एक ऐसा इक्विपमेंट एक ऐसा पूरा सेंटर ऐसा बनाना डेडिकेटेडली और ईच डिवीजन के लिए कि जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज रहेगी जिम्नास्टिक्स के लिए, ताकि जो तालुका लेवल का जो जिम्नास्ट है वो चलो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पर जिम्नास्टिक्स तालुका लेवल पे कर रहे, फिर वो कंपटीशन में जब डिवीजन में आ जाता है तो उसका लेवल एक्चुअली बढ़ना है। तो उसके लिए फिर ही विल प्रैक्टिस इन दैट डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कि जहाँ जिस डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड इक्विपमेंट्स और उसको और डिफिकल्ट मूवमेंट्स सीखने के लिए आसान जाएगा। इस तरह से अगर हमने सोच के आगे स्टेप्स निकालेंगे और आगे स्टेप्स लेके जिम्नास्टिक्स के बारे में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली जिम्नास्टिक्स, तो ये हर एक स्पोर्ट्स में भी अगर एप्लीकेबल करेंगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आई एम टॉकिंग नाउ पर्टिकुलरली जिम्नास्टिक्स के लिए, क्योंकि जिम्नास्टिक्स हैज ए वेरी वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट्स करते हैं। आप हर एक तालुका में ये नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई एक प्राइवेट स्पॉन्सर मिल गया और वो बोलेगा नहीं आई विल डेवलप दिस सेंटर्स लाइक इंटरनेशनल सेंटर और समथिंग, देन आई विल गिव ऑल द इक्विपमेंट, तो दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन हर एक तालुका में ऐसा नहीं हो सकता है। तो
जहाँ जहाँ तालुका में चल रहा है उसमें सिर्फ मैथ्स जो प्रिलिमिनरी और जो बेसिक चलता है इक्विपमेंट्स है, ओनली ट्रेनिंग इक्विपमेंट, ओनली अलाइड इक्विपमेंट। उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल का जितना भी करना है तो फिर वो एक ही डेडिकेटेड एक डिवीजन के लिए सेंटर होना चाहिए कि जहाँ पे पूरे तालुका एंड दो तीन जो डिस्ट्रिक्ट रहते हैं रिप्रेजेंट होते हैं डिवीजन के, उसके सब बच्चे वहां पे जाके वो प्रैक्टिस करे। और उनके लिए कुछ कोचिंग कैंप लगे, एक एक दो दो तीन तीन महीने का, बिफोर कंपटीशन, आफ्टर कंपटीशन ऑल्सो। तो इस तरह से अगर कोई सुविधा और योजनाएं या कुछ बनाए तो आई थिंक दैट बहुत सारे बच्चे खेलते रहेंगे। क्योंकि आज तारीख में 10 जिम्नास्ट खेलते हैं और उसमें से हम वी हैव टू चूज ए सिंगल, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1000 बच्चे एंड उसमें से अपने को चुनने के लिए शुड बी देयर इज ए गुड कंपटीशन होना जरूरी है, जस्ट टू गेट ए डिफिकल्ट मोमेंट्स एंड डिफिकल्टी पाने के लिए। तो वो चीज करके देखेंगे तो आई थिंक दैट ये सिस्टम ऐसा डेवलप करेंगे ऑल ओवर महाराष्ट्र में तो काफी मेरे हिसाब से बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। विद इन 2-3 years वी विल गो इम्प्रूव लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छा हो सकता है उसके अंदर। दैट इज माय आइडिया बिहाइंड इट। और इस तरह से अगर करेंगे, मेरा सजेशन बोलो ये, दिस इज माय सजेशन टू ऑल हायर अथॉरिटीज और हायर जो गवर्नमेंट के जो ये पॉलिसी मेकर्स है, उन्होंने उस तरह से अगर कुछ पॉलिसी करे बहुत अच्छा रहेगा उसके अंदर। यस सर। या सर आपने काफी सारी सेमिनार्स कंडक्ट किए ऑन जिम्नास्टिक्स इन महाराष्ट्र, तो सर उस सेमिनार्स का एक्चुअल में पर्पस क्या था? फर्स्ट थिंग इज दैट जो सेमिनार जो रहते हैं जैसे पर्टिकुलरली जजेस के लिए होते हैं, जस्ट टू इम्प्रूव। अभी ऐसा होता है कि ये जो नेशनल लेवल पे होता है तो एक ही बार एग्जामिनेशन होती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है एक ही बार उनकी एग्जामिनेशन होती है एंड पास होने के बाद उनको ग्रेडेशन हो जाता है। तो वो जो गैप रहती है उस गैप में, बिकॉज सी आज की तारीख में अगर आपने जो एग्जाम किया तो इंटरनेशनल लेवल पे काफी चेंजेस हो जाते हैं, काफी मतलब बहुत एक कॉम्पिटिशन आ गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप आ गया तो वहाँ पे नया एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। तो उस इंट्रोड्यूस करने के बाद उनको डिफिकल्टी कैसे देने का, क्या करने का, ये जो अपडेटिंग ऑफ योर नॉलेज है दैट इज ऑल्सो टेक्निकल नॉलेज, उसके लिए ये सेमिनार लेना बहुत जरूरी है। और वो सेमिनार के द्वारा, सेमिनार के वाया थ्रू दिस सेमिनार दे आर अपडेटिंग दिस नॉलेज ऑफ द जजेस ऑल्सो। तो सिमिलरली कोचिंग के बारे में भी ऐसे है कि लॉट ऑफ चेंजेस, कोचिंग बोलेगा तो इन वैसे देखेगा तो और ये जो जिम्नास्टिक्स के जितने भी एलिमेंट्स है ये सब बेस्ड ऑन साइंस है, सब बहुत ही उसके अंदर डीपली साइंस इन्वॉल्व है। तो वो जब भी पहले सिर्फ बैक समरसॉल्ट, फ्रंट समरसॉल्ट, यही समरसॉल्ट एक सिंगल समरसॉल्ट होता था, उसके बाद अभी मल्टीपल समरसॉल्ट्स आ गया है। और नॉट ओनली दैट, इट इंक्लूड्स ट्विस्टिंग ऑल्सो। पहले तो सिर्फ यस मल्टीपल डबल सॉल्टो होते थे या डबल ट्विस्ट हो जाता था, अभी ऐसा नहीं है, एक सॉल्टो फिर एक ट्विस्ट फिर सॉल्टो, ऐसे मल्टीपल सॉल्टो और ये आ गया है। तो ये हाउ टू टीच दिस वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है। और ये जैसे जैसे ये डिफिकल्टी बढ़ती रहती है तो उसका कोचिंग का अलग अलग एक सेमिनार लेके उनको कोचेस को देना बहुत जरूरी होता है। एंड कोचेस को ये अपडेटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें दो तीन चीजें ऐसे, एक तो बच्चों को स्किल कैसे डेवलप करना है बच्चों में, एंड सेकंड पार्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेफ्टी पार्ट। उसमें किसी बच्चे को, किसी भी लड़के को, किसी भी जिम्नास्ट को इंजरी नहीं होना चाहिए। दैट इज अ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कोचिंग। आज के इसमें पहले अभी इंजरी का बहुत ही मतलब ये जो आपने प्रोपोर्शन देखेगा तो बहुत ही कम हो गया है। वो किसकी वजह से, तो ये जो टेक्निक है किस तरह से करना है, लैंडिंग का टेक्निक बोलते हैं, और ये समरसॉल्ट करना है तो उसके पहले उसका टेक्निक कैसे करना है, लैंडिंग का जो पोजीशंस रहते हैं उसके लिए मसल्स को कैसे डेवलप करना है, ये सभी कोचिंग के जो पार्ट्स है जो डेली बहुत सारे ऐसे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं तो उसका अपडेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हमने ये सेमिनार्स हम रखते हैं। उसमें और एक चीज हम करते हैं कि कुछ ऐसे सेमिनार जिम्नास्ट के लिए भी लेते हैं हम, क्योंकि जिम्नास्ट को भी मालूम होना चाहिए कि अपने को करना क्या है, किस तरह से करना है, वेयर टू कॉन्सेंट्रेट, क्या करना है, बेसिक क्या करना है।
इसके लिए कैसी मेहनत करनी है, हाउ टू डेवलप आवर फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ टू डेवलप द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सभी चीजें उनको भी करने के लिए, उनके लिए भी एक सेमिनार क्लिनिक टू इम्पोर्टेंट है। और हमने इसमें पेरेंट्स का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट इम्पोर्टेंट है। कोई भी किसी को भी डेवलप करना है, किसी को भी ऐसे जिम्नास्ट को नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन बनाना है, तो पेरेंट का जो डेडिकेशन है और पेरेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो उनको भी हम देखते हैं कि भाई ये बच्चा घर में जाने के बाद ठीक तरह से रेस्ट लेता है या नहीं, ठीक तरह से वो खाना खाता है नहीं, डाइट उसके अंदर जाती है नहीं है। तो ये फीडबैक जो होता है वो हम पेरेंट्स के जो सेमिनार्स लेते हैं, पेरेंट्स की जो मीटिंग्स लेती है, तो उसके थ्रू हम लेते हैं। देन हम समझा देते हैं कि भाई ये लड़कों को इसके ऊपर जरा इस टाइम पे ध्यान देना चाहिए, इस आइटम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो दिस दैट इज व्हाई दे आर कंडक्टिंग ऑल दिस सेमिनार्स टू डेवलप एंड टू एजुकेट all, मतलब parents, gymnasts, coaches and judges also. So that is the basic idea and principle for conducting all these seminars and clinics. ओके सर। सर जो आपके कोच थे श्री सुहास पाठारे सर, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और एज ए स्टूडेंट, एज ए कोच एंड एज एन पार्ट ऑफ जिम्नास्टिक्स फेडरेशन आपने इतना सब कुछ सीखा है। तो उसको पूरा एक सम अप करके अगर आपको कुछ एडवाइस देना हो जो लोग अपना करियर जिम्नास्टिक्स में बनाना चाहते हैं, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा है आज के दिन में, मतलब पहले भी था ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत ही ज्यादा इसका परसेंटेज बढ़ गया है कि एज ए स्पोर्ट्समैन के लिए करियर बनाना बहुत ही आसान है। आसान इन द सेंस बहुत इजी हो गया है। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स थे, अभी ऐसे नहीं हो गया है। जैसे आपको अभी आफ्टर 12th डिग्री के लिए पहले सिर्फ 3 स्ट्रीमलाइन था, कॉमर्स है, आर्ट्स एंड साइंस। अभी तो काफी आ गया है उसके अंदर, बहुत ही आ गया। वैसे ही स्पोर्ट्स के उसी के अंदर आ गया है। तो पहले अभी स्पोर्ट्स के लिए भी स्पेशल यूनिवर्सिटी भी है, स्पोर्ट्स के लिए सेपरेट कोर्सेस है, एमपीएड का जो कोर्सेस है वो भी स्पोर्ट्स के लिए बन जाता है। उसके आगे काफी चीजें हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेकर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आ गया है। बाहर जाके फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई और मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं। तो ये चीजें इतनी बढ़ गई है, तो उसमें करियर बनाना बहुत ही आसान हो गया एज ए एथलेट ऑल्सो। अगर आपने अच्छी तरह से किया तो करियर एज ए एथलेट, जैसे आप काफी लोग अभी जैसे आपने जो नेशनल मेडल विनर्स देखेंगे ओलंपिक्स में, तो उनका बहुत ही अच्छा करियर बन रहा है ना स्पोर्ट्स में। तो यू कांट Yes. उसको ये नहीं निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एज ए एथलेट, एज ए सेल्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं हो सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। उसके लिए भी काफी कोर्सेस है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जा सकते हैं। उसके उसके बाद आप साइकोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है, उसी में भी जा सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करके आ गया है। सबसे पहले आ गया स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये भी आ गया है। फिर फिजियोथेरेपी, ये जो है ओनली फॉर स्पोर्ट्स के लिए फिजियोथेरेपी। ये सभी चीजें, ये स्पेशलाइजेशन बहुत सारे आ गया है इसके अंदर। तो उसमें करियर बनाना बहुत ही मतलब देयर आर वाइड स्कोप है उसके। किसी को अगर जर्नलिज्म इसमें स्पोर्ट्स के बारे में अभी आज देखेगा तो स्पोर्ट्स लीगल एडवाइजर्स में भी स्पोर्ट्स में कुछ एक स्पेशलाइजेशन बन गया है। ये दो कंपनी है, दे आर ओनली स्पोर्ट्स के बारे में लीगल एडवाइस दे देते हैं। तो ऐसे सभी चीजें आ गए, तो इसीलिए बहुत ही आसान एंड इजी है स्पोर्ट्स के इसमें करियर बनाना। अच्छा, आसान एंड इजी इसका मतलब है कि मतलब तुम्हारा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, इसीलिए जिसमें इंटरेस्ट है तो उसमें जा सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें तो मेहनत तो करना ही है, अपना दिमाग तो लगाना है, स्टडी तो करना है, हार्ड वर्क तो करना ही है। कहीं भी जाओ, कौन से भी स्ट्रीम लाइन में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको सक्सेसफुल होना है तो हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेडिकेशन इज एब्सोल्युटली उसके साथ आना ही है। तो डेडिकेटेड हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोप आ गया है स्पोर्ट्स के इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी, पहले तो हमारे टाइम तो ऐसे ही था ना
कि आपको ये सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने से क्या मिलने वाला है ना, कि आपको तो नौकरी नहीं मिलने वाली है, कुछ भी नहीं मिलने है। अभी तो एज ए तुम नेशनल चैंपियन भी बनेगा तो, या यूनिवर्सिटी से सिल्क मेडल लाएगा तो फिर भी देयर इज ए रिजर्व कोटा फॉर द स्पोर्ट्स। तो ये कितनी बहुत अच्छा ये आ गया है, अच्छे दिन आ गया है इसके स्पोर्ट्स के लिए। तो वी शुड एवरीवन शुड टेक दैट एडवांटेज, लेना ही जरूरी है। और आपको अगर किसी को भी स्पोर्ट्स में ही जाना है तो बहुत ही अच्छा उसमें स्कोप है उसके अंदर। यस सर। सर आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो यंग जिमनास्ट है या जो यंग कोचेस है जिन्होंने अभी अभी अपना करियर जिमनास्टिक्स में स्टार्ट किया है? ऐसे एडवाइस देना तो मतलब उतना दैट लेवल पे हम नहीं है, लेकिन फिर भी एक कुछ तो दो तीन ऐसे टिप्स बोलो ऐसा मैं दे सकता हूँ। इट्स कैनॉट बी एडवाइस और समथिंग। तो उसमें ऐसा है कि मैंने पहले से ही बोला है कि इसके अंदर अगर आपको सक्सेस होना है तो एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए मतलब आप जिमनास्ट करना है, या जैसे अभी आपने जो क्वेश्चन बनाया तो उसके अंदर वो स्पोर्ट्स का बाकी का जो विंग संभालना है इसे, तो बेसिक थिंग इज दैट हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही हार्ड वर्क करना है उसके अंदर। और जैसे भी आप हार्ड वर्क करेंगे तभी तो आपको उसके अंदर अच्छी तरह से एक सक्सेस हो जाएगा। आप सिर्फ बोलेंगे कि जैसे एजुकेशन में ऐसा होता है कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपको 35 मिलेगा तो यू पास होता है, 36 मिलेगा तो पास हो जाता है, एंड देन आपको एक वो डिग्री मिल जाती है। स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि आप जस्ट खेले और फिर इतना पार्टिसिपेशन करें। आपको उसमें करना है तो यू हैव टू गो फॉर 80% 90%, और वो अचीवमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि आज के तारीख में ये साइंस, ये टेक्निक, ये इतना एडवांस में हो गया है कि उसका सहारा लेना भी बहुत जरूरी है। और अभी ये सभी चीजें इतने आसान कैसे हो गए हैं ड्यू टू ऑल इंटरनेट। इंटरनेट से अभी आपको कोई वो वैसे देखेगा तो इन ऑप्शंस ऑफ एनी कोच यू कैन गो एंड सर्च ऑल टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, आपको मालूम पड़ेगा। एक समरसॉल्ट सीखना पहले तो हमको पता ही नहीं होता है कि एरियर में हवा में समरसॉल्ट करना है तो फिर हाउ टू होल्ड योर लेग, हाउ टू what should be the position of your neck, what should be the position of your shoulder। ये सब अपने को ये करना होता है। आज की तारीख में आप अगर इंटरनेट में समरसॉल्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारे टेक्निक्स उसके अंदर सीखने को मिलेंगे। और जब आप वो विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, तो इट्स वेरी इजी टू फॉलो दैट वन। तो वैसे देखेगा तो ये बहुत आसान तरीका निकल गया है, तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसमें डेडिकेशन करके करना है, यही इंपॉर्टेंट थिंग है। आप बोलेंगे कि थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा हम प्रैक्टिस किया और फिर आई विल गेट द मेडल, नो सॉरी, ऐसा नहीं होता है। काफी चीजें उसके अंदर बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अभी इन बिटवीन अभी आप देखा कि सोशल मीडिया में एक बहुत एक अच्छा ये वायरल हो रहा है, एक क्लिप हो रहा है कि उसने जैसे उस्तान बोल्ट का आ रहा है, हर एक 100 मीटर्स का जो फाइनल करता है, फाइनल के पहले सेमीफाइनल होता है और उसके पहले वो जो क्वार्टर फाइनल, मतलब वो फर्स्ट 3 राउंड होता है। तो 3 रेस बोलेगा तो 30 सेकंड, मे बी लेस और मे बी 30 सेकंड। तो एक ओलंपिक में 30 सेकंड उसका काम खाली 30 सेकंड का होता है पूरा इसमें। बट फॉर दैट 30 सेकंड he has to work hard for the last 10 years 15 years, तो उसने वर्क किया है। तो ये सोच के जाना है। आपका काम सिर्फ हमारा इवन जिम्नास्टिक्स में देखो कि 70 सेकंड्स में 1.5 मिनट्स में आपको पूरा कॉम्बिनेशन करना है। बट फॉर दैट इतना शॉर्ट पीरियड में इतना सब करना है, यू हैव टू शो ऑल द परफॉर्मेंसेज, दैट इज आल्सो विदाउट एनी मिस्टेक। परफेक्शन होना चाहिए इंक्लूडिंग लैंडिंग। बहुत सारे डिफिकल्ट एलिमेंट किया है और फिर लैंडिंग में थोड़ा सा इधर उधर गया, वहां पे भी डिडक्शंस है। तो ये सब बैलेंस संभालने के लिए आपको आपका कीमती वक्त देना बहुत जरूरी है। ये चीज है वेरी डेडिकेटेड, एंड उसके हिसाब से अगर जाएंगे तो ही आपको इसमें सक्सेस मिलेगा। दैट्स ऑल, यही तो इम्पोर्टेंट चीज है और दैट इज इम्पोर्टेंट। यस सर। Yes, sir. सो ऑन दिस नोट वी एंड आवर सेशन। Yeah, काफी thank you अच्छा very था much. ये सेशन, मुझे बहुत सीखने को मिला, जानने को मिला। यस सर, थैंक यू सो मच सर। Yeah, thanks a lot.